Morning kids, welcome to SRU Academy. Today I am going to start subject science chapter 2 components of food, and this is my first part of this chapter. Components of foods means foods में present substances और components means nutrients क्या क्या food में present होते हैं. In chapter first we made list the food items that we eat. चैप्टर फर्स्ट में हमने फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो जो हम खाते हैं. वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप. इवन इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में विच काइंड्स ऑफ फूड दे ऑल ईट इन डिफरेंट स्टेट्स भी ऑल्सो मेड वन टेबल फॉर दैट. तो हमने इस डिफरेंट स्टेट में खाने जाने वाले फूड्स की भी एक टेबल मेंशन की थी अपने लास्ट चैप्टर में. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of ladies' fingers. At another meal could be appam, fish curry and vegetable. A meal could consist of chapati. एक खाना है. कंप्लीट खाना कब होगा जबकि उसमें क्या होता है, चपाती है, दाल है, ब्रिंजल की करी है, इसके अलावा राइस है, सांबर है या वेजिटेबल है या भिंडी है. मतलब एक कंप्लीट थाली जो जिसमें कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर प्रेजेंट ऑन दैम. देन वी आर एबल टू गेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट फूड. सो हियर on your activity number 1, our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetable. It may also include items like curd, butter, milk and pickles. Some examples of meal from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1 and some more meals of this list and either these in table 2.1. आपको इसमें क्या करना है, some common meals of different region and state. आपको different regions के नेम इसमें देना है. then item of greens, क्या वहाँ की स्पेशलिटी है. then वहाँ का स्पेशल ग्रेन्स क्या होता है, वहाँ की फसल क्या है. that you have to write on the second point over here. and then item of दाल और मीट. दाल और मीट के जो आइटम्स होते हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है. देन वेजिटेबल्स लाइक सरसों का साग या कुंदरू जो भी उस स्टेट का फेमस होता है, और अदर चीज़ें भी वहाँ क्या क्या खाई जाती हैं, दैट यू हैव टू मेंशन एंड यू जस्ट हैव टू मेक वन टेबल ओवर देयर. सो आई थिंक दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट टू मच नेसेसरी फॉर यू. सो लेट्स start with the another topic. So come on your next topic, that is what do different food items contain. यानी different food में क्या क्या what do different food items contain. अलग अलग food items में क्या क्या present होता है ये यहाँ पर हम देखेंगे. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हम जानते हैं कि कोई भी डिश होती है जो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है. Which we get from plants or animals. जो कि हमें कहाँ से मिलता है, definitely we just get through the plant or through the animals. From the plants we just get fruits, vegetables and seeds and other things, and from the animal we get milk, egg, meats, everything. So जो भी डिश होती है usually made up by one or more ingredients which we get from the plants or animals. Okay. Ingredients contain some components that are needed by our bodies. और उन ingredients में कुछ ना कुछ components present होते हैं that are very necessary for our body, जो कि हमारी body के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. These components are called nutrients, और इन्हीं components को हम nutrients कहते हैं. Means in all the foods some special substances are present in all the foods, and these substances, these components are very necessary for our body. So these all components or substances are called nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, in minerals means जो main nutrient sources होते हैं जो कि वो food में present होते हैं, that are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains directly
डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई अवर बॉडी। इसके अलावा भी जो फूड होता है उसमें फाइबर मीन्स रफीज प्रेजेंट होते हैं एंड वाटर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दैम विच इज़ ऑल्सो नीडेड बाई अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है। सो व्हेन वी ईट एनी फूड आइटम, ऑल द फूड आइटम कंटेन सम सब्सटेंसेस और कॉम्पोनेंट, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड दीज आर carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals. These are the main ingredients present in our food, and rest of these two more important ingredients are also present in our food, and that is roughage yani fiber and water. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड्स में ये कंटेन प्रेजेंट होते हैं? विथ सम सिंपल मैथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हम इसको टेस्ट कर सकते हैं या तो रॉ फूड में यानी कच्चे खाने में या कुक्ड फूड में कि क्या इनमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो टेस्ट होता है वो हम इजीली वी कैन डू, बट इट इज़ लिटिल बिट टफ एज कम्पेयर टू अदर डू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। पर अदर न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हम ये सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे और अपनी एक सेकेंड टेबल यानी नेक्स्ट एक्टिविटी में उसको ऑब्जर्व करके राइट डाउन करेंगे कि हमको क्या टेस्ट मिलते हैं। नाउ फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। आपको ये सारे टेस्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? आयोडीन की ज़रूरत होगी, कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा की। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। आपको थोड़ी सी टेस्ट ट्यूब्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और ड्रॉपर की भी। ट्राई डीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। आप ये सारे टेस्ट कुक फूड के साथ और साथ में रॉ मटेरियल के साथ ट्राई करेंगे। देन टेबल 2.2 शो यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। और आफ्टर डूइंग दिस टेस्ट, you according to your observation you just make one list 2.2 and mention what you get after this all the observation, all the test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or एनी अदर अवेलेबल फूड। कुछ इन्होंने आइटम्स इस टेबल में मेंशन कर दिए हैं। आपको नेक्स्ट अभी टेबल एक मिलेगी तो आप उसके साथ भी कर सकते हो टेस्ट। इसके अलावा आप अदर कंटेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आप जब भी ये टेस्ट करेंगे लैब में तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको केयरफुली टेस्ट करना है। डू नॉट टेस्ट एनी केमिकल, किसी केमिकल को टेस्ट नहीं करना है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन प्रिपेयर नहीं है जिसके साथ आपको टेस्ट करना है तो आप टीचर की हेल्प से उनको प्रिपेयर कर सकते हो। आगे बॉक्स में उन्होंने बताया है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर दीज सोल्यूशन इन द लैब। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। देयर आर मेन, अब हम टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और नहीं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर बॉडी आर, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत से पार्ट्स बहुत से टाइप होते हैं, पर जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, जो कि स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होते हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इट अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम आराम से इफ़ एनी फूड कंटेन स्टार्च, किसी फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है तो हम इसको आराम से टेस्ट कर सकते हैं। सो इन योर एक्टिविटी टू टेस्ट फॉर स्टार्च, सबसे पहले जो हम टेस्ट करने वाले हैं दैट इज़ फॉर द स्टार्च। ओके, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स। हम सबसे पहले एक बहुत छोटी क्वांटिटी में रॉ इंग्रेडिएंट कच्चा फूड लेते हैं। पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, और इसमें हम डाइल्यूटेड आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं। देन ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। फिर देखिए क्या कोई चेंज होता है फूड आइटम्स में। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू या ब्लैक कलर में चेंजेस हो रहे हैं? ओके, look here, they are doing the test here, test for starch. You can do this test on your lab also. Then come on your next page. A blue black color indicates that
इट कंटेन्स स्टार्च। अगर आपके फूड में ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलता है, इट मीन्स कि वो स्टार्च कंटेन करता है, उस फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। आप इसको रिपीट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट टेस्ट एंड दैट इज फॉर द टेस्ट फॉर प्रोटीन। ओके, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। हम थोड़ा सी एक क्वांटिटी फिर से फूड आइटम की लेंगे। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, हम जो भी फूड टेस्ट कर रहे हैं अगर वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट एंड और पाउडर इट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस सॉलिड को क्रश कर लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे। ग्राइंड और मैश है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, उसको ग्राइंड करके मैश करके पाउडर या पेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसको हमें क्लीन टेस्ट ट्यूब मिलेंगे। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, उसमें वाटर की कुछ 10 to 11 ड्रॉप ऐड करके उसको शेक करेंगे, हिलाएंगे। देन नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके बाद कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट की कुछ ड्रॉप्स लेकर के हम ड्रॉपर के थ्रू 10 to 11 ड्रॉप्स उसमें ऐड कर देंगे। ओके, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप्स ही हम कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की भी उसमें ऐड कर देंगे, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा बोथ। ओके, टेस्ट ट्यूब शेक, देन क्या करेंगे, शेक वेल एंड द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स वॉट टू यू सी। अब क्या करेंगे, हम उसको शेक करेंगे और थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे छोड़ देंगे। डिड द कंटेन्स द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, हम देखेंगे कि अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो हमारा टेस्ट ट्यूब का कलर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। अब वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। ठीक है, जब उस टेस्ट ट्यूब का कलर वॉयलेट कलर हो जाएगा तो इट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दैट फूड। फर्स्ट we just do for the test for carbohydrates, on that we just add the iodine solution, and when the food color change into blue black then it means the presence of starch. Second test we have just did for the protein test. On that we just take a grind food and add some drop of water, also add some drop of copper sulfate and solution of caustic soda, and if the color change, the food color change into violet color, it means the presence of protein, हमें उससे प्रोटीन की प्रेजेंस का पता चलता है। ठीक है, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट अनदर फूड, हम ये टेस्ट को अनदर फूड आइटम्स के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। सो हियर इन योर टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सब फूड आइटम, कुछ फूड आइटम्स में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं उसके लिए एक टेबल बनाई है। जैसे फूड आइटम्स रॉ पोटैटो लिए हैं, उसमें स्टार्च प्रेजेंट लेता, व्हेन वी विल डू द टेस्ट विद दैम देन वी कैन फाइंड आउट। तो आपको इसमें जितने भी आप फूड आइटम्स यू आर टेकिंग ऑन योर टेबल, यू जस्ट हैव टू डू these both of the tests with them, carbohydrate and protein test, then you just have to find out that any changes are there or not, starch present, protein present or fat present or not. Okay, that you have to find out on them. Now your third test is test for the fats. अब फैट के लिए टेस्ट आता है हमारा। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, एक पेपर में लपेट करके उसका क्रश कर लेंगे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर, हमें ये ध्यान रखना है क्रश करते समय कि उस पेपर हमारा फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब पेपर को सीधा करके हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए। डज इट हैव एनी ऑयली पैचेस, होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, इसमें आपको कुछ ऑयली पैचेस टाइप के, जब हम फैट के साथ टेस्ट करें तो डेफिनेटली फैट में ऑयल प्रेजेंट होता है, ऑयल घी इन सब में फैट प्रेजेंट होता है। तो जब हम एक पेपर में इनको क्रश करेंगे तो हमको कुछ ऑयली पैचेस दिखेंगे। तो होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, हम लाइट के अगेंस्ट की में करके उस पेपर को देखेंगे। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पेपर, आपको ऐसा लगता है कि वो लाइट इस पेपर के आर पार आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, आपको इस तरीके से फील हो रहा है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फूड, तो जो वो ऑयली पैचेस होते हैं जिससे हमें लाइट को हम देख सकते हैं कि लाइट हमारी शायद फेंट मतलब लाइट को हम उस पेपर के थ्रू आर पार इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑयली पैचेस ऑन पेपर शो दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट, तो हमें उससे समझ आता है कि जो वो फूड आइटम्स है उसमें फैट प्रेजेंट है।
द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी फूड आइटम्स में थोड़ा सा बहुत वाटर भी प्रेजेंट होता है. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. तो हम उस पेपर को थोड़ा सा रगड़ के जब सुखा देते हैं, इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, it would dry up after some time. If no oily patches shows up after this, the food item does not contain fry. और मीन्स उस जो फूड हम ले रहे हैं उसमें ऑयल तो प्रेजेंट रहेगा, साथ में थोड़ा बहुत वाटर भी प्रेजेंट रहता है. तो जब हम उसको अच्छे से रब करके और ड्राई कर लेते हैं, जब वाटर बिल्कुल सूख जाता है उसके बाद भी हमें उस पेपर में पैचेस दिखाई देते हैं ऑयली, इट मीन्स कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है. और अगर हमें उसमें कोई भी ऑयली पैचेस नहीं दिखाई देते हैं, इट मीन्स इट डजंट हैव फैट. ठीक है ना, उसमें फैट प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, व्हाट डू दीज टेस्ट शो? आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? आप अब जब टेस्ट करो देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि सारी जितने भी आपने टेस्ट किए विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑन दैम, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर प्रेजेंट. Does a फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? अगर किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा भी एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ न्यूट्रिएंट? और ऐसे फूड आइटम जिनमें एक भी कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो आपको ये टेस्ट, यू जस्ट हैव टू डू दिस टेस्ट फ्रॉम विद द डिफरेंट फूड आइटम्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट इन विच food item starch is present, in which food item protein is present, in which food item fats are present. So that actually that you have to do all at your home or in lab with your teacher, and then you have to find out. We tested food items for 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए हमने ये टेस्ट किए. देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? विटामिन्स एंड मिनरल्स आर देट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो भी प्रेजेंट होता है डिफरेंट फूड आइटम्स में. वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमको इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? हियर वी हैव ऑलरेडी डन द टेस्ट फॉर carbohydrate, protein and fats, but here they are saying in food items vitamins and minerals are also present. So why we want vitamins and minerals in our food item? Nutrients, why these nutrients are necessary for us? So we will just study these things in our नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी? हमारे जो और भी वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं. सो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. फॉर दैट टुडे you just revise these all the things and subscribe the channel, like the videos. Thank you and have a nice day.